Good morning, students. During my last class, we have discussed about forms of power sharing. First forms of power sharing we have discussed, that is, power is shared among different organs of the government, such as legislature, executive, and judiciary. That is horizontal distribution of power. Second form, power is shared among different levels of the government. Different levels of the government in our country, there is federal forms of the government. Federal form of government means the level of the government is more than one. That is called federal form. Central government, state government, local government. So central government, state government and local government. Central government power is given to state government. Further, state government power is given to local government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट से पावर जो वो लोकल गवर्नमेंट को दिया गया. एंड इट हैज बीन अरेंज वर्टिकली. वर्टिकली इन द सेंस कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पावर बढ़ेगा. लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो पावर घट रहा है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर है, फिर इसके बाद इससे कम स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगा और इससे कम लोकल गवर्नमेंट के पास. इसलिए इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है, चूँकि ये वर्टिकली अरेंज है. जैसे पहला फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग था, दैट वाज हॉरिजेंटली अरेंज था, और ये जो है ये वर्टिकली अरेंज है. इट इज क्लियर. Third forms of power sharing. Power is shared among different social groups. Social groups means religious and linguistic groups. Already we have discussed. Or community government, because in Belgium we have discussed community government is formed by the same speakers. So in Belgium there is three kinds of community government. Dutch speakers, they have formed their own community government. French speaker, they have formed their own community government. German speaker, they have formed their own community government. That is based on language. Social groups in our country, we can take as for example, seats has been reserved in parliament for weaker section. Weaker section in community government or in local government, seat has been reserved for women. That is social groups. So power has been shared among different social groups. It is clear? Fourth,
power is shared among different political parties pressure groups etc. Power is shared among different political parties pressure groups. पावर जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच शेयर। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, हर पार्टी को ये राइट है कि वो चुनाव में भाग ले सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और अगर मेजॉरिटी उसके पास हो तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। गवर्नमेंट फॉर्म करना अगर एक पावर है तो इट कैन नॉट बी रेफर्ड टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। Every political party have right to contest in election, and if they have got majority, they can form the government. हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है, और अगर उसको मेजॉरिटी है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। इट इज क्लियर? तो ये पावर शेयरिंग यही खत्म होता है। आप इस पूरे चैप्टर को फिर से एक बार देख लीजिएगा। इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको महसूस हो, कोई भी क्वेरी हो, तो इस नंबर पर पर्सनली कांटेक्ट करके आप अपने क्वेरी को क्वेरी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं हमेशा इसके लिए उपलब्ध हूँ। अब अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगा। उस क्वेश्चंस को आप लिखेंगे, उसके आंसर्स को, फिर जब स्कूल खुलेगी फिर हम लोग उसको चेक करेंगे। दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म। फेडरल से बना है फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। So more than one level of government, that is referred to फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि अगर गवर्नमेंट का लेवल एक से ज़्यादा है तो वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाते हैं। इन आवर कंट्री देयर इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इन आवर कंट्री देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इट मीन्स पावर इज शेयर्ड among different levels of government, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तभी एग्जिस्ट करेगा जब पावर का प्रॉपर शेयरिंग होगा। और अगर पावर का शेयरिंग नहीं होगा तो डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट का एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम में पावर शेयर है अमंग डिफरेंट स्पीकर्स। डच स्पीकर्स के बीच भी पावर है, फ्रेंच स्पीकर्स के बीच भी पावर है, और जर्मन स्पीकर्स के बीच पावर है। तो बेल्जियम में भी जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है दैट इज फेडरल। लेकिन सारे कंट्री में ऐसा नहीं है। जैसे श्रीलंका में आप देखेंगे तो वहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट का दो ही नेचर हो सकता है, या तो वो फेडरल होगा स्ट्रक्चर, या तो वो फेडरल होगा या फिर यूनिटरी होगा। अगर फेडरल होगा इट मीन्स गवर्नमेंट का लेवल एक से ज़्यादा होगा, और अगर गवर्नमेंट का लेवल एक होगा तो उसका स्ट्रक्चर यूनिटरी।
अब इस 3 कंट्री के बारे में वी हैव डिस्कस अबाउट इंडिया एंड बेल्जियम एंड श्रीलंका, which country having unity form of government and which country having a federal form of government. In Belgium, in India, in both the country there is federal form of government, while in Sri Lanka there is unity form of government. Why there is unity form of government? Because power is not shared among different peoples in Sri Lanka. कि श्रीलंका में पावर को डिफरेंट पीपल्स के बीच शेयर नहीं किया गया है, इसलिए वहाँ जो फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होगा वो यूनिटरी है, और हमारे यहाँ पावर को शेयर किया गया है, इसलिए मेरे कंट्री का जो स्ट्रक्चर होगा वो फेडरल होगा। अब स्ट्रक्चर फेडरल और यूनिटरी हो गया, नेचर भी किसी कंट्री के गवर्नमेंट का या तो यूनिटरी होगा या तो फेडरल। In which situations nature of the government will be considered unitary, and in which situations, which conditions the nature of the government will be considered federal. Structure we have discussed. The government having more than one level of, a country having more than one level of government, it is referred to federal form of government. A country having one level of government, that is unity form of government. Nature. Federal, यूनिटरी। फेडरल का मतलब कि पावर का शेयर हुआ, अब पावर का शेयर 2 तरह से हो सकता है। पावर का शेयर 2 तरह से हो सकता है, एक शेयर टेम्पररी होता है और एक शेयर परमानेंट। इफ पावर इज गिवन कैनॉट बी टेकन अवे, it shows permanently power has been shared। कि जो एक बार पावर दे दिया गया उसको वापस नहीं लिया जा सकता है, इसका मतलब पावर का आपने परमानेंट शेयर किया है। उस स्थिति में गवर्नमेंट का नीचे फेडरल होगा, और वैसे स्थिति में कि वंस पावर इज गिवन कैन बी टेकन अवे बाय हायर लेवल, तो उस परिस्थिति में गवर्नमेंट का जो नेचर होगा वो यूनिटरी होगा। इट इज क्लियर। आज इतना ही पढ़ाएंगे और रेस्ट इन नेक्स्ट क्लास। ओके।